Pasan Jain sir writes, I had some operation. Since then, my feet have gradually become numb. Varicose vein, spine operation. So I'll go a little more deep. Okay, I'll go a little more deep. Try to remember your grandfather and grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को जरा याद करें. Are you physically more stable than them or physically more strong than them? क्या आप उनसे ज्यादा strong हैं physically? How much effort you can make and how much effort they can make? They could make, rather. They could make a lot of effort. Women would walk with a lot of pitchers of water on their head for kilometers. Today, nobody can do that. At least in the cities, women can't do that. Not even males. They can't make physical effort. Now, one thing is physically we have become weak. Second, 100 years back, how many people used to have diabetes, hypothyroidism, thyroidism, hyperthyroidism, blood pressure issues, heart issues? 100 years back. Nobody. किसी को भी बीमारी नहीं थी ये सब. So these all disease, 80% of the total disease that is happening in the world today are called as chronic disease, lifestyle related disease. या फिर आप उसे कहेंगे your organ, internal organ and function has become weak. डायबिटीज का मतलब पैनक्रियास कमजोर हो गया, थायराइड कमजोर हो गया, हार्ट कमजोर हो गया, लिवर कमजोर हो गया. So internal organ, 80% of total problem is related to weakness of internal organ. And your internal organ and external body have a correlation also. So your pain may not be a local problem, that we are not looking in that manner. It may not be local problem. Pain happens because of inflammation. Inflammation की वजह से पेन होता है. Inflammation हटा दीजिए, पेन चला जाएगा. It is not because of structural issue. पेन स्ट्रक्चर से नहीं होता है कि यहां पे घिस गया, ये हड्डी टूट गई, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, ये दो मुंह आ गए इसके. नो, इट डजंट हैपन बिकॉज ऑफ दैट. अदरवाइज हमारे अष्टावक्र महाराज जी तो चल भी नहीं पाते फिर. आई हैव लॉट ऑफ ब्रोकन बोन्स एंड देयर इज नो पेन. तो पेन क्यों होता है? पेन इन्फ्लेमेशन से होता है. इन्फ्लेमेशन जलन जैसी एक चीज हो गई. एंड there can be an external inflammation, there can be an internal inflammation. बाहर से खरोंच लगती है तो जलन होता है ना आपको. So there can be an internal inflammation. Internal inflammation क्यों होता? लिवर आपका अगर प्रॉब्लम है तो इंटरनल इन्फ्लेमेशन. सो लिवर पे आपने बचपन से कितनी केमिकल बम्बार्डिंग किया है? हाउ मच केमिकल बम्बार्डिंग यू हैव डन, योर लिवर हैज गॉन थ्रू. कितने वैक्सीन लिए थे जब पैदा हुए थे? कितनी दवाइयां खाई हैं? सो इट्स अ केमिकल बॉम्बार्डिंग दैट वी हैव डन ऑन आवर बॉडी. जमीन पे केमिकल बॉम्बार्डिंग हमने किया ना. ऑन आवर लैंड वी यूज्ड पेस्टिसाइड्स एंड ऑल द फर्टिलाइजर्स. व्हाट हैपेंड? आवर लैंड बिकेम बैरन. हमारी जमीन की उर्वरता खत्म हो गई. तो आप कह रहे हैं जैविक खेती करो. नाउ वी आर सेइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. गो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग. So tell me, when will you go towards organic farming of your body? ये जमीन की उर्वरता खत्म हो चुकी है, इसका स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है, इसको वापस कैसे करेंगे? Through chemicals, will you be able to bring back the strength of human system? Never, कभी नहीं हो सकता. Just look at last 50 years, पिछले 50 सालों को देखिए. सारी बीमारियां बढ़ी है ना. All kinds of disease has increased rampantly. इतनी तेजी से बढ़ी कि आप सोच नहीं सकते. Do you know cancer is increasing at the rate of 12% every year? Diabetes has become a pandemic already. Hypothyroidism, females are becoming hypothyroid at the age of 13, 14. Kids are becoming diabetic at the age of 2 year, 3 year. 3 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं. हार्ट डिजीज हैज बिकम द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ. तो हमें तो देखना पड़ेगा ना. हमारे शरीर की क्षमता खत्म हो चुकी है.
internal as well as external. So if you want to come out of pain, you must reduce the risk factor in the system. Inflammation आपको कम करना पड़ेगा. When you learn कुंभक therapy, we teach you certain methods. कुछ मेथड हम आपको सिखाते हैं. वो मेथड ऐसे हैं कि अभी आप गूगल करोगे तो नहीं मिलेगा. We are reviving this whole science. So there is a method called Prakriti Shula. There is a method called Kaka Khechari. There is a method called Shula Raj. ये सारे के सारे मेथड आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं. Apart from increasing the strength of your organ and organ functioning, it reduces inflammation. That is how you come out of your pain. तभी आप अपने दर्दों से निकल के आएंगे. The second aspect is pain is also psychological. It enters your psychology very easily. शारीरिक रूप से जो पेन होता है वो तो होता ही है, वो दिमाग में घुस जाता है बहुत जल्दी. तो इसीलिए मेंटल इश्यूज इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड. मेंटल इश्यूज दुनिया में बढ़ रहे हैं. हर एक को है ही, अलग अलग प्रोपोर्शन में, मे बी एक्सेप्टेबल लेवल पे है. इमोशनल इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं. नाउ आवर प्रोग्राम एड्रेसेस दोस थिंग्स. 100% मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज ठीक हो जाएंगे. तो इट विल अगेन, व्हाट वी आर सेइंग इज, ये जो मल्टीपल प्रॉब्लम आ रही है ना, व्हेन यू से आई एम हैविंग दिस, आप क्या कह रहे हैं? मुझे ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है. ये तो होना ही है, क्योंकि आपका फंडामेंटली जो जिस तरीके से जो स्ट्रेंथ मैकेनिज्म है आपके शरीर का, षडबल, 6 तरीके की स्ट्रेंथ आपके शरीर के कमजोर है. तो उनको स्थापित करना पड़ेगा, उनको वापस लेके आना पड़ेगा. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि आप रीजनरेशन क्या आपका शरीर करेगा. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझना पड़ेगा. एक 2 लीटर का जो बॉटल होती है ना, 2 लीटर बॉटल, वाटर बॉटल, पानी भरो, अपने राइट हैंड से रोज 100 बार ऐसे ऐसे करके उठा लो. आफ्टर 10 days विल यू सी योर राइट हैंड हैज मोर मसल्स. थोड़ा स्ट्रांग हो गया दाएं हाथ, मसल्स बढ़ जाएंगे इसके. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डर्स ऐसे ही बनाते हैं ना, आप भी कर सकते हैं. व्हाट है इसका मतलब? क्या हुआ? आपने रीजनरेट कर दिया मसल्स को. बट कैसे किया? वेट उठा के किया? नहीं, वेट उठाने के लिए क्या किया? व्हाट डिड यू डू टू लिफ्ट वेट? यू हेल्ड योर ब्रेथ. आपने कुंभक किया. तो कुंभक करके रीजनरेशन आप करेंगे, यू विल सी योर बॉडी इंटरनल ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर विल रिजुवनेट. योर एक्सटर्नल बॉडी कैन रिजुवनेट, योर इंटरनल ऑर्गन कैन रिजुवनेट. ये दोनों ही रिजुवनेशन हो सकता है. हमारा पर्पस ही है आपके शरीर को रिजुवनेट करना, वापस इसको उसी हेल्थ में लेके आना जिससे आपकी परेशानियां खत्म हो जाए, जिससे आपकी बीमारियां जो हैं वो खत्म हो जाए. ये आपके शरीर पे काम करके ही होगा. दूसरी चीज, दवाइयों को छोड़ेंगे तभी आपका शरीर ठीक होगा. केमिकल जमीन में डालना बंद करते हैं तभी वो अपनी उर्वरता वापस कर लेके आती है. आपका शरीर भी ऐसा ही है. तो जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होगा और आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, तब आपको दवाई के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी. और जब दवाई छूटने लगेगी तो आपका हेल्थ और तेजी से अच्छा होने लगेगा. इसीलिए आप कुछ भी करें, मगर शरीर की जो रिजुवनेशन कैपेसिटी है, इसके जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ हैं, इसके जो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से काम करता है, उसको जरूर सही करें, बढ़ाएं, बैलेंस में लेके आएं और एक रिदम में लेके आएं अपने जीवन को. रिदम भाव लेके आता है, बैलेंस को राग कहा जाता है और स्ट्रेंथ को ताल कहते हैं. और इन तीनों को जोड़ेंगे तो बनता है भारत. भारत हमारे तो देश के नाम में ही हेल्थ जुड़ा हुआ है. ये इकलौता कल्चर दुनिया में है जो साइंटिफिक कल्चर है. आपका खून ही साइंस है. ये तो फिरंगी चुरा के ले गए, टैग लगा लिया साइंस, और आप देख लीजिए सारी दुनिया बर्बाद कर दी. अब दूसरे ग्रह पे भागने की सोच रहे हैं. तो ये सही नहीं है, एक डायरेक्शन गलत है. सही डायरेक्शन जरूर आपको चूज करना पड़ेगा हेल्थ के लिए.